Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Let's go to the article of the day. We have two articles today. First one is, why is the textile industry struggling to perform better? So, students, in today's episode, we are going to explore the challenges facing India's textile industries and the broader impact of its struggles. Right? तो इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके challenges क्या है, struggles क्या है, उसके बारे में हम आज focus करेंगे. See, India's textile industry is one of the oldest and most significant sectors of the economy. It contributes nearly 2% of the country's GDP and it employs over 45 million people, which is huge, right? So, this makes it the second largest employer after agriculture. Now, imagine एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है और इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो यू कैन इमेजिन द सिग्निफिकेंस इट हैज एंड पूरे इकोनॉमी में इसका क्या रोल रहेगा. सो डिस्पाइट इट्स historical importance and vast workforce, the industry has been facing with multiple challenges in recent years. Recent के years में, हाल ही के सालों में हमने देखा है और जो बात इस आर्टिकल में भी कही गई है जिसकी वजह से हमने एक तरीके से we have seen a decline in its competitiveness. Competitiveness में हमने decline देखा है. Now, one of the primary reasons for the India's struggle is the rising cost of raw materials, especially cotton. Right? कॉटन का जो रॉ मटेरियल है उसमें जो राइस देखने को मिला है ये एक वन ऑफ द प्राइमरी रीजन है. व्हाई? सी, इंडिया इज अ मेजर कॉटन प्रोड्यूसर, राइट? And India has been facing issues like fluctuating global prices, inconsistent yields. Why? अरे क्लाइमेट चेंज भी तो एक इशू है ना. तो क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो हमें ओवरऑल प्रोडक्शन में देखने को मिल रहा है. ड्रॉट्स, erratic rainfall patterns, it has disrupted cotton production. So this make it difficult for manufacturers to secure a stable supply and that too at reasonable prices. एक तो स्टेबल सप्लाई करना ही इतना मुश्किल हो रहा है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, कॉटन उगाने का जो कॉस्ट है वो ही इतना हाई है और वो भी एक रीजनेबल प्राइस में सिक्योर कर रहा हो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है. Additionally, the textile industry has been significantly impacted by competition from other countries जैसे बांग्लादेश हो गए, वियतनाम, चाइना. See, students, these nations offer cheaper labor and they have developed efficient manufacturing processes. तो एक तो इन कंट्रीज में चीप लेबर अवेलेबल है और उसके साथ ही इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी एडवांस कर लिया है. तो इट इज ऑलरेडी गिविंग देम एन एज इन द ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट. ऑलरेडी उन्हें ये सब चीजें एक एज प्रोवाइड करा रही है. वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास क्या है? हायर लेबर कॉस्ट है. जो लेबर हायर करते हैं वो उन्हें महंगा पड़ता है. And this is combined with outdated machinery in many factories. So this makes it harder to compete with other nations जैसे बांग्लादेश, वियतनाम. इनसे compete करना भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि एक तो देखो पैसे वैसे ही कम रहते हैं. दूसरी चीज, जो ये जो कंट्रीज है यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है. चीप लेबर अगर अवेलेबल है तो उसका ये यूज कर सकते हैं. Second thing, not second, the third thing is the industries, it has challenges
and it is further compounded, it is further increased by a slow adoption of modern technologies. And even government is not, supporting that much टू इनोवेशन. इनोवेशन के नाम पर कुछ कुछ चीजें कंडक्ट करा ली जाती हैं, लेकिन एक इंडस्ट्रियल लेवल पर क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्या मॉडर्न इनोवेशन होना चाहिए, वो अभी भी कहीं ना कहीं लैग कर रहा है. सो while some sectors they have embraced automation and digital tools, a large part of the Indian textile industry remains traditional and labor intensive. Labor intensive का मतलब क्या होता है कि लेबर्स का प्रयोग हो रहा है, लेबर्स का उपयोग हो रहा है, वर्कर्स को ज्यादा हायर किया जा रहा है, मैनुअली लेबर कंडक्ट किया जा रहा है, राइट. तो ये चीजें हो गई, जो कुछ कुछ चीजें हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रहा है. अब इसी टेक्नोलॉजिकल लैग के कारण क्या हो रहा है कि लो प्रोडक्टिविटी है. सो दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू मीट इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. Even during the time of COVID-19 pandemic, COVID, and it served as a severe blow to the textile industry. जो COVID-19 हुआ था, तो टेक्सटाइल सेक्टर को भारी नुकसान हुआ था. ओके. और वहीं पर ग्लोबल डिमांड तो बढ़ती जा रही थी. तो विद ग्लोबल डिमांड फॉर क्लोथिंग एंड it dropped to a certain level during lockdowns, and even this resulted in supply chain disruption. supply chain disrupt हो गई, तो बहुत से ऐसे छोटे और मध्यम वर्ग के एंटरप्राइजेस थे जिन्हें सस्टेन करने में दिक्कत आ रही थी. आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हमने ऑब्जर्व किया कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसी शॉप्स थी जो कि बंद हो गई थी. मतलब पहले वो फ्लरिश हो रही थी, लेकिन कोविड के टाइम पे वो बंद हो गई थी, राइट. सो इवन एज द वर्ल्ड रिकवर, दिस सेक्टर, कौन सा सेक्टर, मीडियम में स्मॉल सेक्टर जो है, एंटरप्राइजेस है, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो है, they were still finding it difficult to regain its footing. And many countries, they also reported financial losses and closure, right. So the impact of these struggles goes beyond just the textile industry itself. We know that the major employer, the slowdown, it has led to job losses, particularly among women. Women के साथ सबसे ज्यादा ये हमें देखने को मिला है. And this has caused a ripple effect in communities which are dependent on textile jobs. जैसे कुछ सारी ऐसी कम्युनिटी है, हमने ये भी देखा है कि जहां पर बच्चों इंडस्ट्री डेवलप हुई है, वहां पर हमने देखा है कि विमेन भी अपने घरों से बाहर निकलकर फैक्ट्री में जॉब कर रही हैं. स्पेशली दिस इज ट्रू टू द लोअर रैंक्स ऑफ द सोसाइटी. उनके लिए ये ज्यादा वैलिड है कि हमने देखा है कि वहां पर फैक्ट्रीज डेवलप हुई है, तो वहां पे विमेन जा रही है, काम पर कर रही है, और ये एक उनके लिए बहुत ज्यादा एम्पावरिंग मूवमेंट की तरह देखा जा सकता है. बिकॉज दिस causes a sort of ripple effect in whole community, and it contributes to rising employment and even economic hardship. अगर देखा जाए कि अगर इंडस्ट्री कोई सही से काम कर रही है, तो इस एरिया को जो हार्डशिप है वो भी रिड्यूस किया जा सकता है. अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे चैलेंजेस की. तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल के मामले में, टेक्सटाइल के मामले में, कपड़े के मामले में हमने देखा कि वी हैव सीन अ डिप, राइट. So as the country loses its market share to competitors, foreign exchange earnings are also affected. आप ये देखिए कि अगर कोई कंट्री कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलकर अपनी गाड़ी के लिए या फिर इवन अपने बिजनेस के लिए अगर नुकसान हो रहा है, तो उसके ओवरऑल बिजनेस के लिए वो फायदेमंद नहीं है, राइट. एंड द डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स आल्सो मीन, अगर एक्सपोर्ट
डिक्लाइन होता रहेगा, तो उसका मतलब ये भी होगा कि वी हैव मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन अ ग्लोबल मार्केट, एंड दैट इज बिकमिंग विच इज बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव। लाइक आप देख रहे होंगे कि काफी सारे इनोवेशन आ रहे हैं। जैसे अभी बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले एक कंसेप्ट मैंने देखा था टीवी पे, जहां पे वो बात कर रहे थे सस्टेनेबल फैब्रिक के बारे में, या फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड। इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड का मतलब होता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाएं ताकि पर्यावरण पर कम नुकसान हो। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से जो टेक्सटाइल एज अ गार्बेज के रूप में वहां पे कलेक्ट किया जाता है, और कई सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्री में इट वाज बीइंग डायरेक्टली डंप्ड, right? So this has to be avoided. So overall इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस, जैसे रॉ मटेरियल का इशू है, ग्लोबल कंपटीशन का इशू है, स्लो पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन भी एक फैक्टर है। एंड दीज इश्यूज नॉट ओनली अफेक्ट द इंडस्ट्री बट ऑल्सो हैव ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशन, क्योंकि इससे जॉब लॉस भी हो सकती है, और इवन कंट्री की इकोनॉमी को भी असर कर सकता है, राइट? अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं, जहां पे बात की गई जा रही है नोबेल प्राइज की। सो हॉपफील्ड एंड हिंटन, मशीन लर्निंग पायनियर्स, दे विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, right? This is the news. So what happened in the in the present year 2024? Physicist named Hopfield and George E. Hinton from the University of Toronto, they were recognized for their work in developing methods for machine learning using artificial network. Okay, तो सबसे पहले ये मशीन लर्निंग क्या है? See, machine learning, students, it's also a type of technology where computers learn to make decision or predictions based on the data. जो भी है वो डेटा उन पे पुट किया जाता है, तो मशीन लर्निंग के थ्रू वो उस कंप्यूटर को मेक श्योर करते हैं दैट द कंप्यूटर लर्न्स टू मेक अ डिसीजन और इवन predictions which is based on data, विदाउट बीइंग कि हर हफ्ते ही उसको प्रोग्राम किया जा रहा है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। And it's also like teaching a computer to recognize patterns. For example, if you show a machine many pictures of cats and dogs, it learns to tell the difference between the two by identifying features. जैसे कि भाई कैट का आपने देखा होगा, इट हैज फर टेक्सचर, शेप है, और डॉग का भी आपने स्ट्रक्चर पता है। तो मशीन लर्निंग क्या करता है कि जब हम उसमें डेटा इनपुट करते हैं, तो हमारे सामने दो ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, और साथ ही साथ एक डिसीजन लेने में भी काफी ज्यादा उपयोगी होता है कि अगर हम जो मशीन लर्निंग है उसका उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, हमने देखा गया कि गत वर्षों में ओवर टाइम द मशीन गेट्स मोर डेटा, so it improves its prediction, right? And it is similar to how humans learn from experience. अब हम कुछ देर पहले हम ये चीज देख सकते हैं कि अगर जो मशीन लर्निंग है उसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले इट इम्प्रूव्स द प्रिडिक्शन पार्ट, and it also learn, it's similar to how humans learn from experience. Let's say if I am going outside and मेरे सामने कोई डॉग आ गया और मैं उनसे टकरा गई, मैं डॉग से टकरा गई हूँ और मैं गिर गई हूँ, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी गोइंग आउटसाइड आई विल मेक श्योर दैट देयर इज नो डॉग नियर बाय, और अगर वो आता भी है तो मैं काफी ज्यादा कॉशियस हो जाऊंगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट मशीन लर्निंग ऑल्सो डू, right? It improves its prediction, similar to how humans learn from experience. And this is used in many areas like recommending movies, recognizing speech, and even driving cars. तो
इसके डेवलपमेंट के लिए हॉपफील्ड और हिंटन को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है. So students, that's it for today's episode. Thank you for listening.